اس نشست کی جان محترم منظور احمد وانگنو صاحب جو ہمارے مہمانی خصوصی ہیں، اور اعزازی مہمان پروفیسر امیر شاہ، ہماری سربراہ محترمہ گلشن افروزہ، کلسٹر سے آئے ہوئے اساتذہ صاحبان، والدین، طلبہ و طالبات، اپنے سکول سے تدریسی اور غیر تدریسی عملہ، میں آپ سب کو اس بزم کی آرائیوں میں دل کی گہرائیوں سے والہانہ استقبال کرتا ہوں۔ ہم سب کا مقصد ایک ہے، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے پھر بٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تکدو، دنیا ہے خرافات کے مقامات میں۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو سری نگر سے سب سے مایہ ناز انوائرمنٹلسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ اس نشست میں اس وقت موجود ہیں۔ ان کا کام اگر میں گننا شروع کروں تو شاید اوراق کم پڑیں گے۔ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ میں کسی طریقے سے جو کشمیر تھا یا جو سری نگر تھا جس کے لیے مشہور تھا ہے، کیا میں اس کو وہ شکل واپس دے دوں۔ سر، جو کام آپ لوگوں نے چنا ہے اس کام کے تئیں ہماری ہائر سیکنڈری میں بھی جو کچھ گرین انیشیٹیوز ہیں جن میں ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے، 1 بوٹل 1 پلانٹ ہے، گرین یہ گین کے مومنٹ ہے، بٹر فلائی گارڈن ہے، یہاں روز پارک ہے، یہاں آپ کا لش گرین ایریا ہے، یہ سب کا سب جو ہے ہم بھی اسی کڑی کی ایک حصہ دار ہیں۔ اچھا، یہ جو کام ہے یہ ایک اتفاق ہی ہے۔ کل جب میں اپنے محترم منظور احمد وانگنو صاحب کے پاس گیا تو مجھے لگا جو ان کا انیشیٹو ہے، ہمیں بات آپس میں ہوئی بھی نہیں ہے، دیٹس پیرلل ٹو اٹ، انہوں نے پہلے ہی ایسا کام لے لیا ہے۔ یہاں پر جب مجھے یہاں کا ٹور کرایا گیا، اس کمپس کا وزٹ کرایا گیا، تو یقین مانیے میرے آنکھیں نم ہوئی، میں بہت بہت خوش ہوا۔ میں یہاں کے پرنسپل صاحبہ کو، یہاں کا جو ٹیم ہے اس کا، اور یہاں کے جو میم ارم اینڈ خاص کر کے یہاں کے جو گارڈنر صاحب ہے فردوس احمد گنائی صاحب، I have no words to express my sincere thanks to you. Thank you so much. اصل میں ایک تو یہ ان بچوں نے جہاں اس وقت اپنا ہنر دکھایا پریکٹیکلی، اس کے لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ٹیم کو۔ سب سے اہم چیز ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کمپس کو پلاسٹک فری بنائیں گے، پالیتھین فری بنائیں گے، جو ہمارے ڈاکٹر شاہ صاحب نے بھی کہا۔ تو اس پر میں ریکویسٹ کروں گا، یہ فرسٹ تھنگ ہوگا دیٹ ول نیور فائنڈ پلاسٹک بوٹلز اور پالیتھینز ان دس کمپس۔ صحیح ہے؟ ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہو گیا ایک چیز، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو جب ہم بیسک چیزیں سکھائیں گے، صاف ستھرا ایمان کا جو ہمارا آدھا حصہ ہے، ہم بہت کہتے ہیں مگر ہمارے کو ہم کہتے ہیں، میں اپنی زبانی میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ تیسرا، یہاں میں کچھ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ ہمارا کمپس ہے کھمبر میں، اور وہاں پر ہم نے شروع کر دیا ہے، گرین زون بنایا، میشو پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے۔ اس میشو پلانٹیشن ڈرائیو کے ساتھ ہمارے فاروق صاحب یہی ہیں، تو وہ صبح اور شام کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے وہ اس پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہم کام کریں، it should not only be a photo op, it should be that we should do whatever، اگر تھوڑا ہی کرے مگر عمل کے ساتھ کرے اور سسٹینیبل کرے اور پریکٹیکل کرے۔ کل میں ایک پروگرام میں تھا، اس میں ٹاپ انٹلیکچوئلز انوائرمنٹلسٹ یہاں کشمیر کے تھے، تو میں بھی 5 گھنٹے ہم وہاں تھے، 5 hours امیجن۔ تو ایک وہاں پر ایک ذی عزت
शख्स ने अजीब बात कही. उसने कश्मीरी में एक वर्ड कहा जो मुझे दिल पर लगा. कहा हाय यथ कशीर माज क्या पूरस, क्या 5 वरी बोट क्या पूरस यथ कशीर. ये हमारे लिए काबिल ऐसा वो कहते हैं ना कि वो रियली हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. हमें देखना हम कहाँ पहुंचे हैं. थोड़ी सी बारिश होती है हमें डर लगता है खुदा न खास्ता कहीं सैलाब ना आए. Although we were welcoming rain, जब यहाँ पर बारिश होती है कितना खुश हम होते थे. अब अगर बारिश पड़ती है थोड़ा डर लगता है. आप देख लीजिए लैंडस्लाइड्स कैसे हो रहे हैं. आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ. आप देखिए वहाँ क्या दूसरा है उत्तराखंड में क्या हुआ. इन हालातों खुदा न खास्ता हमारे कश्मीर में ये ना हो. इसके लिए हमें सबको एक और नेक बन के बनना. ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसको हमें बहाल करना है. जो डल के यहाँ पर स्कूल्स है उनके जो भी स्टाफ यहाँ पर है प्रिंसिपल साहिबा हैं या टीचर्स हैं, मैं दरख्वास्त उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डल में जब जहाँ जहाँ उनके जो नाले वगैरह वो जो होते हैं ना वो छोटे छोटे वाटर बॉडीज वहाँ पर उनके एरिया में है. मतलब एक तो अगर बड़ा डाल और उसके पीछे जो उनको हम कश्मीरी में नाला कहते हैं वो नाले उनको साफ रखें. अगर पानी बहाल हो जाएगा नेविगेशन सिस्टम ठीक होगा 60 to 70% हमारा फ्लड आने का खतरा बच जाएगा. यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम जो कम्प्लीटली फेल्ड है. बाहर से कोई हमें नहीं आया है उसको खराब करने के. हम क्या करते हैं खाना कुछ खाएंगे उसी नाली में डालते हैं. तो अब उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है सरकार के साथ मिलकर. और जो वो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी ठीक करना है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल साहिबा को कि वीकली एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनाए स्टूडेंटों को टीचरों को. यहाँ पर जैसे मैंने जब ये बटरफ्लाई पार्क देखा और बाकी जो यहाँ बॉटनिकल गार्डन देखा इतना दिल खुश हो गया. इतना दिल खुश. मैंने जब फूल उठाने की कोशिश की अपने साथ लेने की तो मुझे क्या पता था मुझे इतना होनहार गिफ्ट मिलेगा. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच. और जिसने इस पर ज्यादा काम किया जो राज वो कहते हैं ना कि एक बागवान आता है बाग को बनाता है और दूसरा बागवान आता है वो खत्म करता है. तो आज जो ये बागवान है हमारे हाजी फिरदौस साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. इधर आइए. और इनको मैं गले लगाना चाहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने जो काम किया है इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. और थोड़ा सा मैंने अपनी तरह से इनके लिए कुछ हदिया रखा है. आज ही मैंने सुना अभी जब मैं चल रहा था कि ये इसकी मेहनत है. तो जब इनको हौसला अफजाई हम करेंगे ऐसे लोगों के तो आप आगे देख लीजिए कि आगे कैसा होगा. तो इनको हौसला अफजाई करने के लिए मैं एक बार फिर सबको ये गुजारिश करूँगा कि तारीख से इनका मुबारकबाद. अब हम सबको एहसास लाना है. हम सबको एक और नेक बन के काम करना. जो हमारे आपस में यहाँ पर एक जोड़ होकर जैसे मेरे इनको प्रोफेसर खुर्शीद साहब को और इनकी टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रिंसिपल साहब को कि फौरन जल्द अज जल्द आपके आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम हमें मंडे को जाना है कैंपिंग 3 दिन के लिए. आफ्टर यू कम बैक यू इनवाइट देम टू बोथ द स्कूल्स बॉटनिकल गार्डन विद बटरफ्लाई गार्डन एंड रोज गार्डन. ये डेफिनेटली होना चाहिए. आपके पास वहाँ पर जखीरा पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव एवरीथिंग देयर. यू हैव एम्पल ऑफ लैंड. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कोऑर्डिनेट विद हिम. और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ ना स्पीचेस बहुत देते हैं. वी ट्राई टू मेक थिंग्स विद सोल्यूशन प्रैक्टिकल. अगर प्रैक्टिकल होगा ना अब जो आपका यहाँ रहना ये जो सौदे दल है इसके नीचे जो इंटीरियर डल है गवर्नमेंट ने जो सामने जो बिग डल्स है ना 2 डल बॉडीज है वाटर बॉडीज उनको बहुत अच्छा किया. वहाँ पर आज भी मशीनें चलती 4-4 5-5 मशीनें होती है. वहाँ वो बहुत साफ सुथरा है. उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की पिछले 4-5 साल. मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंटीरियर डल की तरफ जाए. हमने जब देखा कि 2014 में जब यहाँ फ्लड आया हम अंदर थोड़ा हमारा एक ट्रस्ट भी चलता है थोड़ा हम काम कर रहे थे इंटीरियर डल में यहाँ रहने वाले साइड वगैरह. तो हमें मास्क लगाना पड़ता है.
इतना बू आता है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है इन कोलैबोरेशन विद लुकमान। उनको आप भी लेटर लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, और हमारा जो नेल्को का टीम है, निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे, स्कूल के बच्चे भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे। हम फिलहाल सद कदल से लेकर फजाल बद तक ये जो पैच है इसको साफ करेंगे, उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल आज का दिन मेरा फिर कामयाब हो गया। और एक टाई अप आपके स्कूल के साथ करेंगे, और यहाँ शुरुआत करेंगे आपके स्कूल के साथ। हमारा जो स्कूल है बिलालिया एजुकेशन यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम आगे जाएंगे और आप हमारे साथ साथ आएंगे और हमें सिखाएंगे, क्योंकि वी आर नोन्स इन दिस फील्ड, हमें कुछ पता नहीं है। मगर आपने जब ये देखा, मैंने आई वॉज रियली, हमारी ये बच्ची यहाँ नेशनल डिबेट्स में गई है और वहाँ पर अवार्ड्स लिए हैं, तो मैं इसको वाकई कहूँगा ग्रीन 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 स्कूल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। और जो भी जैसे शाह साहब ने कहा कि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑन ग्राउंड। वंस अगेन जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। थैंक यू सो मच। कि ये जो हमारे ब्रिजेस जो बनते हैं ये हमेशा स्टील और सीमेंट से नहीं बनते हैं, ये इन इनिशिएटिव से बनते हैं। और मेरा ये प्रिंसिपल साहब आप भी नोट कीजिए, खुर्शीद यू आल्सो नोट इट, गिव एन असाइनमेंट टू देम। स्कूल, क्लासरूम और होम के दरमियान कोई रिश्ता है, क्लासरूम और जो घर है उसके दरमियान एक रिश्ता है, जहाँ पे ये बच्चा पलता पोसता है। ये हमारे पास कुछ टाइम रहता है, उस्ताद के पास मेजर टाइम उसे अपने घर में होता है, अपने पेरेंट्स के साथ। आपके क्या फराइज हैं, हमारे क्या फराइज हैं, उन्हें जान लो। ये ब्रिज बड़ा अच्छा और मजबूत ब्रिज बनेगा, ये बड़ा प्यारा ब्रिज बनेगा, जिसमें हमारी कमियां जो भी होंगी हम उन्हें दूर कर लेंगे। और इस ब्रिज से चलने फिरने से ये जो बच्चे जो चले फिरेंगे, इनमें इनको बड़ा आराम मिलेगा। इनमें इसके इतने फायदे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये फायदे जो हैं, दूरियां दूर होंगी, कंसेप्ट मिसकंसेप्शन दूर होंगे। हमारे बच्चे रजिस्टर यहाँ पे होते हैं और फिर पढ़ते कहीं और है, किसी कोचिंग सेंटर में। कभी हमने ये नहीं जांचा कि कहीं हमें गलती तो नहीं है। हमारा बच्चा रजिस्टर यहाँ करता है और पढ़ता कहीं और है, ये भरोसा इसे किसने छीन लिया है। उस्ताद जांच लें, देखें, कोई देर अभी नहीं हुई है। ये एक वबाल बनेगा एक दिन कि ये रजिस्टर यहाँ पे है और पढ़ता कहीं और है, ये कमियां हम में हैं। ये इसने कभी, इसे हम दानाई सिखाते हैं, इसे हम विजडम सिखाते हैं, इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए। जो मंजूर साहब जो कहते रहते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड कहा है कि एहसास आना चाहिए। जब तक ये एहसास आएगा तब तक हम सस्टेनेबिलिटी की बातें नहीं करेंगे। इन्होंने बड़ा फौरन कहा कि प्लास्टिक बोतल उठा लीजिए। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा 10-20 जो है वो शीशे की बोतलें खरीद लें, उतना ज्यादा पैसा उसमें नहीं लगेगा। 100 बोतलें भी खरीदोगे, जो भी पैसा आगे मुझे बताइए, मैं दूंगा। इस स्कूल में जो है प्लास्टिक को गुड बाय कीजिए, सस्टेनेबिलिटी आएगी। 100 बोतल की बिल आप मुझे दे दीजिए, मैं दूंगा। This was one initiative for which you are appreciated for building the bridge. Then that second initiative which you have done, which is very close to my heart, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी आसपास के जो आपके हमसाया हैं, नेबरिंग स्कूल्स हैं, छोटे या बड़े, उनको अपने साथ लाना, उनको अपने साथ चलाना। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसके बड़े फायदे हैं। उसमें लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप शेयर अपने रिसोर्सेज कर सकते हो, आप टीचर्स, आप मैन पावर शेयर कर सकते हो, आप जो है इसमें अपनी लेबोरेटरीज को शेयर कर सकते हो। आपको पता नहीं है कौन सा बच्चा कहाँ पे डल में कहीं पे है, वो दूसरा हमारा कलाम बन सकता है, कहीं कोई पता नहीं है। आप बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो कहाँ भी पढ़ता है, किधर भी पढ़ता है। मैं कलाम की एक छोटी मिसाल दूंगा। वो छोटे स्कूल में पढ़ता था, उसका 5th का टीचर मिस्टर आयर, वो उसे बड़ा डिसिप्लिन सिखाता था, बड़ा डिसिप्लिनरी टीचर था।
जिंदगी के वो तरीके सिखाता था। और दूसरा उनका टीचर 8th में था, मिस्टर सोलोमन। मिस्टर सोलोमन ने उसको सिखाया रिस्पॉन्सिबिलिटी के दर्स दिए। एक बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, वो दर्स उन्होंने दिए उस टीचर ने, और फिर वो रिस्पॉन्सिबल बना, और फिर उसने हमारी कंट्री के लिए क्या क्या काम किए, कितने अच्छे काम किए। वी आर प्राउड ऑफ हिम, सो स्टूडेंट्स शुड फॉलो ट्रैक ऑन देम। शाह साहब यहाँ नहीं रहेगा, बाकी लोग नहीं रहेंगे, इनको संभालना है ये, और इनको तैयार कीजिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए।